آخری زمانے کی نشانیاں، سائنس آف دا اینڈ ٹائم. آخری زمانے کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم الآخرت، اور انگلش میں کہتے ہیں ایسکیٹالوجی. ریپچر کے لیے یعنی کلیسیا کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے لیے خوبصورت دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے پڑھتے ہیں. پہلا تسلونیکیوں اس کا 4واں باب، اس کی 16ویں اور 17ویں دو آیات. لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. کہیے آمین. پھر کہیے آمین. تو تسلیمیوں کے خط کے 4تھے باب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ خداوند آئے گا، کلیسیا کو لے جائے گا، اور اس کو نام جو دیا گیا ہے نام ہے ریپچر. اور کلیسیا آسمان پہ ہوگی، خوشی منائے گی. لیکن جو ٹریبولیشن ہے جو ریپچر کے بعد ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی مشہور آیت ہے، اور وہ تسلیمیوں کا 5واں باب ہے. اس کا مطلب 4تھے باب میں کلیسیا اٹھائی گئی ہے، 5ویں باب میں مصیبتوں کا ذکر ہے. ترتیب ٹھیک ہے، پہلے کلیسیا اٹھائی گئی، بعد میں مصیبتیں، ٹریبولیشن. تو آئیے پڑھتے ہیں پہلا تسلیمیوں 5واں باب، اس کی 2 اور 3 دو آیات. اور یہ لکھا ہے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچے. سنیے، یہ جو مصیبتوں کا دور ہے یہ ان پر آئے گا جنہوں نے مسیح کو رد کیا. ان میں نامی مسیحی بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی، جنہوں نے ایک دفعہ کلام سنا اور رد کیا، انجیل کی کلام کو قبول نہیں کیا. یہ مصیبتوں کا دور ان کے لیے ہوگا کیونکہ کلیسیا تو اٹھا نہیں جائے گی، اور اس کا نام اس دور کا ہے خداوند کا دن. اور خداوند نہیں والی ہے. اب تو وہ شفقت سے پیش آ رہا ہے، محبت سے، لیکن جب کلیسیا چلے جائے گی خداوند اپنے چاہو جلال اور قدرت کے ساتھ بدلا لے گا، اور جو زمین پہ لوگ ہوں گے مصیبت میں ہوں گے، اور اس کو کہتے ہیں ٹریبولیشن. تو یہ سب کچھ سے پہلے کیا کچھ ہے جو جن کو ہم نشانیاں کہہ سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب کوئی دیر باقی نہیں ہے. یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو بہت جلد کا مطلب ہے سارے جو نشانات ہیں all the signs of the end time fulfill ہو چکے ہیں. اور آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. اور سامنے اسکرین پہ ایک جھلک ہے کہ آخری زمانے کے نشانات کیا ہیں. جھوٹے نبی آئیں گے، اور جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح آئیں گے، اور یہ ہو چکا ہے، لہذا اب دیر نہیں ہے. پھر قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ یسوع آنے والا ہے. سب قومیں جو ہے مسیحوں سے عداوت رکھیں گی، اور یہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس ملک میں اور دنیا کے سب ملکوں میں مسیحوں سے عداوت کی جاتی ہے. پھر جگہ جگہ کال اور بھونچال اور کال کے ساتھ مری یعنی کہ وبائیں، اور پھر ایسا رسانی ایمانداروں کی کلیسیا کو ستایا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن. یہ ٹریبولیشن نہیں ہے، ٹریبولیشن تو گنہگاروں کی ہے، پرسیکیوشن ایماندار اس میں سے گزر رہے ہیں. پھر عجیب نشان آسمان پہ دکھائی دیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے، آپ میرے اگلے پیغامات میں سنیں گے. اور پھر بے دینی حد سے بڑھ جائے گی، اور اس کا آپ کو پتہ ہی ہے، بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ دانش بڑھ جائے گی.
दानियल की किताब के 12वें बाब में लिखा है आखिरी ज़माने में दानिश बढ़ जाएगी। और आप हैरान होंगे, अब सारे काम रोबोट के जरिए से होते हैं। चंद दिन पहले मेरी बेटी ने हमें एक वीडियो दिखाई, उन्होंने ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो खाना मंगवाना था, तो रोबोट जो है वो खाना लेकर आया। जब रोबोट खाना लेकर आया, उन्होंने उसके अंदर पैसे डाले और खाने के लिए दरवाजा खुल गया, उन्होंने खाना लिया और रोबोट वापस चला गया। इस कदर तरक्की हो गई है, दानिश बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, लिहाजा निशानियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। यीशु के आने में देर नहीं है। क्या ये यीशु राजा आएगा? क्या ये यीशु राजा आएगा? बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। तो निशानियां जब पूरी हो चुकी हैं तो देर किस बात की है? तो आज जिस निशानी पे मैं बात करूंगा, आज का मेरा पैगाम जो है वो जिस निशानी के बारे में है वो है लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह। और मत्ती 24वां बाब पढ़ते हैं, उसकी छठी आई आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। ये लड़ाइयां झगड़े सब कुछ जो सतर्क पे सतर्क चढ़ाई, कौम पे कौम चढ़ाई, और एवरीवेयर यू कैन सी द वॉर्स, और ये जो वॉर्स है इसके दौरान दुनिया खत्म नहीं होगी। ये यीशु मसीह के आने से पहले की निशानियों में से एक है। खात्मा बाद में होगा, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। ये जो आयात मैंने पढ़ी है यीशु का पहाड़ी वास, आप कहेंगे पहाड़ी वास तो मत्ती के 5वें बाब में है। ये पहाड़ी वास जो है ये 24वें बाब में है, क्योंकि यीशु ने जैतून के पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को तालीम दी कि वो आएगा और निशानियां क्या होगी। और आज जिन निशानियों में मैं बात करूंगा आपको पता चल गया उसका नाम क्या है, बोलिए सामने क्या है? लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह। तो तैयार है सुनने के लिए? दुनिया में हर तरफ अभी इंतशार है, बेयकीनी की सूरत हाल है, मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है, फौजें जो है वो चढ़ाई करने के लिए तैयार है हर तरफ, और लोग खौफजदा है। लेकिन यीशु ने पहले ही खबरदार कर दिया है ऐसा होगा, इसलिए खौफ ना खाएं, खुदावंद आपके साथ है। और ये जंगें जो है ये खात्मा नहीं है, ये निशानी है। और ये नहीं कि हम खुश हो रहे हैं जंगों से, हम जंगों से खुश नहीं हो रहे, हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि जो पेशेवरियां की गई है, जो नबूवतें की गई है, जो प्रोफेसीज की गई है, वो पूरी हो रही है और यीशु के आने में देर नहीं है। बोले हालेलुया। कितने जो चाहते हैं यीशु मसीह जल्द आ जाए, वो तालियां बजाएं। जो लोग बाइबल के खिलाफ हैं वो कहते हैं यार ऐसी गल्ला ही है, जंगें तो पहले भी होती थी। जी हाँ होती थी, लेकिन उन जंगों में अगर आप तरतीबवार इस जमाने की तरफ आए तो बतदरीज उन जंगों में इजाफा हो रहा है, शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अगर पहले सैकड़ों में लोग मरते थे, अब लाखों में उनकी तादाद बढ़ रही है। अब शिद्दत आ गई है जंगों में, और ये अभी होगी। अभी हमें जंगों का इंतजार नहीं करना, लेकिन जंगें होंगी। तो मैं जो पहली जंग आपके सामने रखना चाहता हूं वो सुन लीजिए। लेकिन पहले आपको बता दूं कि जब मैं जंगों के बारे में बताऊंगा, ये आप में खौफ पैदा करने के लिए नहीं है, ये आप में उम्मीद के लिए है। ये जब मैं आपको निशानियां बताऊंगा, आपने डरना नहीं, खौफ नहीं खाना, क्योंकि यीशु ने कहा खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का होना जरूर है। बल्कि जब ये निशानात आप देखें तो सर ऊपर करके खुदावंद तेरा शुक्र हो, निशानियां पूरी हो रही है, तू जल्द आ रहा है। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि जो हलाकतें हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, आप उनके लिए शुक्रगुजारी करें। उनके लिए शुक्रगुजारी नहीं करनी, बल्कि शुक्र करना है कि यीशु की आमद जल्द है, नजदीक है, यीशु आने वाला। बोले हालेलुया। तो चंद जंगें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने सारी नहीं बयान कर सकता, बहुत सी जगह हैं, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं सन 1000 से। सन 1096 से 1291 तक
200 साल तक एक जंग रही, और इनको इंग्लिश में क्रूसेडर्स कहा जाता है, उर्दू में सलीबी जंगें, मजहबी जंगें इनको कहा जाता है। और मैंने कहा ये 200 साल तक ये जंग होती रही, और इसका मकसद क्या था? सियासी भी था, मुआशी भी था और मजहबी भी था। मैंने 3 वजूहात आपको बताई हैं, मजहबी, सियासी, मुआशी, लेकिन ये 3 नहीं, कुछ और भी था। और वो वजह, मेन वजह वो थी जिसकी वजह से ये जंगें हुई। मेन वजह ये थी कि यूरोप के जो क्रिश्चियन मुल्क हैं, कैथोलिक्स जो कंट्रीज हैं, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा हम यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाएंगे और उस पर कब्जा करेंगे। और ऐसा हुआ। तो ये जंगों का नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम से ये जंग करके यरूशलेम को आजाद करवाएंगे, उनका कहना था हमारा खुदावंद यहाँ पे उसने मुनादी की, यहाँ पे यरूशलेम के इलाके में उसकी बशारत हुई, सारी मुनादी यहाँ पे मसलूब हुआ, यहीं पे दफन हुआ, यहीं पे जी उठा और यहीं से आसमान में चला गया और यहीं पे उसने वापस आना है और यहीं पे हुकूमत करनी है, लिहाजा ये वापस लेके रहेंगे। और वापस ले लिया। लेकिन बाद में यरूशलेम कभी किसी के हाथ, कभी किसी के हाथ, और अब वो इसराइलियों के हाथ में है। तो मैं बयान कर रहा हूं जंगे। फिर एक और बड़ी जंग, सबने सुना होगा, आलमी जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली आलमी जंग। तो ये 1914 में शुरू हुई, 1918 तक 4 साल तक ये जंग जारी रही। और इसमें ममालिक जो थे आलमी, तो आलम के जो मुल्क हैं, फ्रांस और जापान, सर्बिया, पुर्तगाल, रूस, अमेरिका, रोमानिया, इटली, बेल्जियम और यूनान, इतने मुल्क इस जंग में थे। और ये जंग जो है, इस जंग से 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए। 1 करोड़ तकरीबन फौजी और 60 लोग आम लोग जो है मारे गए, बेशुमार लोग जख्मी भी हुए। तो ये मैं जंगों से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं, निशानियां पूरी हो रही हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब दूसरी आलमी जंग, एक और जंग हुई, आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और ये 1939 में शुरू हुई, 1943 में 6 साल तक ये जंग रही। इसमें 85 लाख हलाकतें हुई, बेशुमार लोग जख्मी हुए, और उस जंग के असरार अभी भी कई मुल्कों में पाए जाते हैं। तो इन ममालिक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, नॉर्वे, यूनान, यूगोस्लाविया, पोलैंड और नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, ये सारे मुल्क इस जंग में थे। और इस जंग के नतीजे में क्या हुआ? 60 लाख यहूदी मारे गए। और इसमें एक अलग नाम है होलोकॉस्ट, और लेकिन इसी जंग का हिस्सा है। 60 लाख यहूदी मारे गए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इसमें जो मरने वालों की तादाद है 85 लाख है, और जिसमें से 60 लाख यहूदी हैं। बहुत सी इमलाक, प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ। और फिर आपको याद है नागासाकी और हिरोशिमा का नाम किस किसने सुना है? नागासाकी, हिरोशिमा, ये जापान के शहर हैं। इसी जंग के दौरान अमेरिका ने इन पे हमला किया। एटॉमिक बम पहली दफा इस्तेमाल हुआ, और इसका नाम था बम का द फैट मैन। उस बम का नाम था द फैट मैन। ये बम गिराया गया और नागासाकी और हिरोशिमा जब से खत्म हो गए। और एक मुद्दत तक वहां पे कोई आबादकारी नहीं हो सकी। अभी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से उसको बहाल किया जाए। अब एक और जंग, ईरान में बादशाहत थी, बाइबल के जमाने से चल रही थी, जिसको फारस की ममलूकत भी कहते हैं, शाही फारस। तो जो ईरान की जो बादशाहत है, 2500 साल तक इसमें बादशाहत रही। और मेरी होश में, जो मेरी उम्र के शायद तुम्हें पता हो, मेरी होश में 1979 में, सबको बता दो 1979 ज्यादा दूर नहीं है, 1979 में ईरान की शहनशाहियत का खात्मा हो गया। और इसका आखिरी बादशाह जो था रजा शाह पहलवी, और उसकी बीवी का नाम फरा था, फरा पहलवी। ये वहां से भाग निकले, उनको किसी तरीके से भगा दिया गया। और देखिए 2500 साल की हुकूमत का खात्मा हुआ,
बादशाह मल्क और मलका दूसरे मुल्कों में पनाह ढूंढ रहे हैं और लोगों ने पनाह नहीं दे रहे। अगर पनाह देंगे तो उन्हें खतरा था कि हम पे हमला हो जाएगा। और एक और वाकया उसके बाद हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, कितनों ने अफगानिस्तान का नाम सुना है? ये वो मुल्क है जो मिशनरियों का कादिर है। यहाँ पर शुरू जमाने से मिशनरियों को कत्ल किया जाता रहा है। यहाँ बादशाह थी, आखिरी बादशाह जाहिर शाह था और उसका अपना बहनोई दाऊद, उसने इसका तख्ता उल्टा 1973 में। और जाहिर शाह जो है वो भी रज़ा शाह पहलवी की तरह, राम के बादशाह की तरह पनाह ढूंढ रहा था, लेकिन इटली ने उसे पनाह दे दी। अभी तक अफगानिस्तान में अमन नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी तक जंगे हैं। कभी तालिबान आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है और यह अमन नहीं है। फिर इंडिया और पाकिस्तान, 1948 में पाकिस्तान कायम हुआ और तब से ही जंगें शुरू हो गई। लेकिन दो जंगें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1965 की जंग और 71 की जंग। दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत मुल्क हो। बहरहाल मैं जिस बात पे जोर देना चाह रहा हूं, देखो देखो कोई आ रहा है, बोलिए देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। निशानियां पूरी हो गई हैं, पूरी हो गई हैं नबूवतें सभी, तो नबूवतें पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी जंगें और भी हैं। अब सोवियत यूनियन एक बड़ा मुल्क जिसका नाम मौजूदा नाम रूस है, बहुत बड़ी पावर, और इस बड़े मुल्क का खात्मा हो गया बड़ी जबरदस्त जंग के बाद। 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और अब वो टुकड़े अलग अलग मुल्क हैं और रूस की ताकत कम हो गई है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पे हमला किया, अब 23 भी गुजर गया, 24 गुजर गया, अभी तक ये जंग जारी है। तो दुआ किया करें, वहां बहुत से मसीही हैं, खुदा उनकी हिफाजत करे, किया करें दुआ यूक्रेन के लिए। और आखिरी जंग जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है इस्राइल। कितने जो तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ खड़ा करें, पहले यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ। 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क नमदार हुआ और वो इसराइल है। जिस दिन वो कायम हुआ, कहते हैं साल मनाते ही ओले पड़े, तो उसके चंद दिन बाद उर्दू ने उस पर हमला कर दिया। वो लहदा बात है कि बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल फाते रहा। उसके बाद ये जंगें जो हैं इस तरह शिद्दत इख्तियार कर गई कि अभी पिछले साल 7 अक्टूबर को, पिछले साल 2023 में हमास ने इसराइल पे हमला किया और उसके बदले में ये जंग अभी भी जारी है, अभी भी जंग जारी है। और ये जंग इतनी खतरनाक है कि जो गाजा है, गाजा इस तरह तबाह हो गया है कि मैं सुन रहा था किसी का तबसरा कि 14 साल लगेंगे उसका मलबा उठाने में। ऐसी भाई मुझे बताएं, जो पहले जगह होती थी, पैदल फौजों की जगह या तलवार से जगह या घोड़ों में जगह, उनमें ऐसी लड़ाई होती थी? नहीं होती थी। यीशु ने तो कहा होगी, तो ये मदद प्लीज इजाफा भी हो रहा है, शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। और मैंने जैसे कहा गाजा का मलबा उठाने में 14 साल लग सकते हैं और जंग अभी तक जारी है। वेस्ट जो उसका वेस्ट कोस्ट है वहां जंग जारी है, यमन में ही जंग हो रही है, लुबनान में जंग हो रही है। अभी हाल ही में ईरान ने इसराइल पे हमला किया था और अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है और ये जगह बढ़ती चली जा रही है। आखिरी जमाने में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले तो नेज़े चलते थे और भाले और बर्छियां और तलवारें, अब जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आप हैरान होंगे, सुनिए आप हैरान होंगे, हजारों साल पहले बाइबल में पेशन गोई हो गई थी, बता दिया था कि आखिरी जमाने में जो जंगें होंगी वो कैसी होंगी, हथियार कैसे होंगे। ये मिसाइल का जिक्र बेशक वहां मिसाइल नहीं लिखा, ना एटॉमिक बम ना न्यूक्लियर बम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप एक झलक देखिए। हबक्कूक की किताब 3 बाब और उसकी 11वीं आयत, तेरे
اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ یہ پیشن کوئی ہے کہ آخری زمانے میں جو تیر ہے اڑنے والے ہوں گے۔ یہ کون سے ہیں؟ میزائل ہیں، اور ان کی روشنی اور چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب اور مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ اس کا مطلب یہ ایسی جنگ کا ذکر پہلے بتا دیا ہے، ایسا اصلہ ہوگا جو بجلی چمکے گی، ان کی روشنی نظر آئے گی، لوگوں کی آنکھیں چمک آ جائیں گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ میرے پاس اور بھی آیات ہیں آخری زمانے کے احتیاط کے بارے میں کہ یہ ساری مشن وہی ہیں جو اب ہو رہی ہیں، تو پوری ہو رہی ہے نبوت سبھی۔ تو آج اس پیغام کا میں آپ کے ساتھ اطلاق کرنا چاہتا ہوں۔ اطلاق یہ ہے، خبردار رہیں، جاگتے رہیں، ہوش میں آئیں۔ یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگو اور تیار رہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں رہ نہ جائیں۔ اور کبھی کبھی جن کو بہت اشتیاق ہے یسوع مسیح کے آنے کا، جنہیں بہت انتظار ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، وہ صبح اٹھتے ہیں، اچانک جب باہر نظر پڑتی ہے کوئی نظر نہیں آتا کسی وجہ سے، تو کہتے ہیں ریپچر تو نہیں ہو گیا، میں رہ بھی نہیں گیا۔ او بھائی، کاش کے ہم میں سے کوئی رہ نہ جائے، ہم اٹھائے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ خبردار رہیں، تیار رہیں، تیاری کریں، یسوع جلد آ رہا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 42ویں آیت، جہاں یسوع نے نشانیاں بتائی ہیں، 42ویں آیت میں دیکھیں اسے تسلی بھی دی ہے۔ پڑھے سب کٹے پڑھے، 1 2 3۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن نہیں آئے گا، کس دن آئے گا۔ بس جاگتے رہو کہ وہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، کس دن آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے کب وہ آئے گا۔ کلیسیا کو لینے کے لیے سوئے رہے گی تو سوئے رہ گئے۔ وہ 10 گواہیوں میں سنا نا، 5 سوئی رہ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گواہیوں میں سے بھی کوئی 5 گواہیاں رہ جائیں۔ گواہیوں سے مراد ہے مقدسین، ایماندار، تو ایماندار کی جو رہ گئی، تو جاگتے رہے اور جگہوں میں یاد رکھیں ہماری قوت ہے، ہماری پناہ ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ پانے جے کر ہڑ بھی آئے، نالے پانی کرن شو، خوف نہ کریے پہاڑاں دا، پاوے چھڑ جان جان۔ تو زبور 46 کی پہلی آیت پڑھی، گھر جا کے پورا زبور میں پڑھی ہے، اور سب کٹھے بولے میرے ساتھ مل کے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں مستقل مددگار۔ گھبرا نہیں جانا، یسوع نے کہا پریشان نہیں ہونا، سر اوپر اٹھا کے کہنا شکر و خدا نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، تو جلد آنے والا ہے، وہ ہماری پناہ ہے، ہماری قوت ہے، وہ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ بولے پریز دی لارڈ۔ اور وقت کو غنیمت جانے، ٹائم تھوڑا ہے۔ جب آپ نے نجات پائی اس دن کی نسبت اب یسوع مسیح کا آنا نزدیک ہے۔ ہر روز جب ہمارے دن گزرتے ہیں تو آمد قریب آتی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ سالگرہ مناتے ہیں، یاد رکھیں وقت گزر رہا ہے، آگے اور وقت آنے والا ہے اور یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ غنیمت جانے، افسیوں 5 باب کی 16ویں آیت، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ دن برے ہیں، بدی بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور طریقوں کے وسیلہ سے بدی بڑھ رہی ہے۔ وقت کو غنیمت جانے، باز آئیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھیں، ماں باپ پہ بھی نظر رکھیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھیں کہ کون ہے جو خدا سے دور جا رہا ہے، انہیں واپس لے کر آئیں۔ وقت کو غنیمت جانے، یسوع جلد آنے والا ہے۔